میری بیوی ہر جمعرات کو درد کا بہانہ بنا کر کہتی، مجھے مولوی اللہ دیتا کے پاس لے جاؤ، مجھے دم کروانا ہے۔ مولوی اللہ دیتا ہمارے محلے کا امام تھا اور بہت ہی نیک بندہ تھا۔ میری بیوی مولوی اللہ دیتا سے دم کرا کر آتی تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی۔ اب تو میری بیوی کافی صحت مند بھی ہو گئی تھی، لیکن اس بات نے مجھے شک میں مبتلا کر دیا کہ مولوی اللہ دیتا میری بیوی کو کمرے میں لے جا کر 1 گھنٹہ کون سا دم کرتا ہے اور میری بیوی بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ آج پھر جمعرات کا دن تھا جب میری بیوی درد سے رونے لگی کہ مجھے مولوی اللہ دیتا کے پاس لے جاؤ، لیکن اس رات مولوی اللہ دیتا نے عجیب بات کہہ دی کہ میری بیوی کو 3 دن کے لیے آستانے پر چھوڑنا پڑے گا۔ میں اپنی بیوی کے ہاتھوں مجبور تھا اور مولوی اللہ دیتا کی بات مان لی اور بیوی کو چھوڑ کر گھر آ گیا۔ 1 گھنٹہ گزرا تھا، مجھے شک سا ہونے لگا۔ میں واپس اسی وقت مولوی اللہ دیتا کے آستانے پر گیا تو دیکھا کہ کمرے کی لائٹ چل رہی تھی۔ جب اندر جھانک کر دیکھا تو حیران ہو گیا کہ مولوی اللہ دیتا میری بیوی کے۔ جمعرات کا دن میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، میری بیوی کی حالت خراب ہوتی، اسے دورہ پڑ جاتا اور پھر مجھے مولوی اللہ دیتا کے پاس لے جانا پڑتا۔ آج بھی میں گھر میں داخل ہوا تو حالات مختلف نہ تھے۔ میری بیوی سر پکڑے بیٹھی تھی، کبھی اپنے بال نوچتی اور کبھی حلق سے عجیب آوازیں نکالتی۔ اماں تو اس کی یہ حالت دیکھ کر گھبرا جاتی۔ بہرحال میں نے اپنی گاڑی نکالی، اماں نگین کو سنبھالتی ہوئی گاڑی تک لے آئی۔ نگین کی حالت کافی خراب ہو چکی تھی۔ میں جلدی سے اسے مولوی اللہ دیتا کے آستانے پر لے گیا۔ مولوی صاحب جوان اور شہر کے جانے مانے مفتی صاحب تھے، ان کے پاس جو بھی جاتا انہیں ضرور شفا ملتی۔ میری بیوی کا معاملہ ابھی کچھ الگ نہ تھا۔ ہر جمعرات میں اسے مولوی صاحب کے پاس لاتا اور وہ اسے دم کرتے تو وہ ٹھیک ہو جاتی۔ میں تو اسی پر خوش تھا کہ چلو زندگی میں سکون تو تھا۔ ہفتے کے باقی دن آرام سے کٹ جاتے تھے۔ خیر میں نے مولوی صاحب کے آستانے پر پہنچ کر امی نے اس کو آستانے پر چھوڑا اور باہر آ کر بیٹھ گئے۔ اماں بھی پریشان تھی۔ ہر بار جب نگین مولوی صاحب کے پاس جاتی اسے آدھا گھنٹہ لگ جاتا۔ مولوی صاحب دم کرتے اور اسے باہر بھیج دیتے، بلکہ یوں کہیں کہ وہ خود ٹھیک ٹھاک باہر آ جاتی۔ مگر آج آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تھا، نگین ابھی تک باہر نہ آئی۔ مجبوراً میں خود ہی اٹھ کر آستانے کی طرف بڑھا تو مجھے نگین کے قدموں کی آواز آئی اور وہ آستانے سے باہر آ گئی۔ وہ مکمل ٹھیک تھی، لیکن اس کے چہرے پر عجیب سی پریشانی تھی جسے میں سمجھ نہ سکا۔ اماں نے مجھے کہا ہمیں اس کا کوئی مکمل حل ڈھونڈنا ہوگا، کال کو مولوی صاحب نہیں ہوں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ساری زندگی تو یوں درباروں کے چکر نہیں لگا سکتے، بہتر ہے کہ تم مولوی صاحب سے خود بات کرو اور تعویذ لے کر دو جس سے یہ ٹھیک ہو جائے۔ بہرحال میں نے سوچا اگلے دن دیکھا جائے گا۔ اگلی جمعرات آئی، نگین کی حالت پھر خراب ہو گئی۔ میں اسے لے کر مولوی صاحب کے آستانے پر چلا گیا۔ جیسے ہی آستانے کے اندر قدم رکھا مجھے مایوسی ہوئی، کیونکہ اب کی بار وہاں مولوی صاحب موجود نہیں تھے۔ ان کی جگہ کوئی ادھیڑ عمر آدمی تھا، یہ بھی خلیے اور شکل سے مفتی ہی لگتا تھا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ اس کے پاس میری بیوی کا علاج ہے یا نہیں۔ خیر میں نے نگین کو اندر جانے کا کہا۔ نگین اندر گئی، اس کی حالت بہت خراب تھی، مگر جب 2-3 منٹ بعد جب وہ آستانے سے نکلی اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی اور وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ اس کی طبیعت تو بحال ہو گئی، مگر ابھی تک وہ بہت خوفزدہ تھی۔ اس اثنا پر مولوی صاحب بھی اٹھ کر باہر آ گئے۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ انہوں نے ہمیں سلام دعا کے بعد پوچھا۔ تب میری ماں بتانے لگی کہ میری بہو کا ایک مسئلہ ہے، جمعرات کو اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے، پھر اسے مولوی صاحب کے پاس لانا پڑتا ہے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کا مکمل علاج ہو جائے۔ مولوی صاحب نے اماں کو باتیں دھیان سے سنی اور کہا کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو 3 راتیں اور 3 دن کا چلہ کاٹنا پڑے گا، لیکن اس میں بہت دھیان اور احتیاط کی ضرورت ہوگی، ساتھ ہی آپ کو یہ لوازمات بھی چاہیے۔ مولوی صاحب نے جب لوازمات کی فہرست بتائی، اماں کا تو سر گھوم گیا اور بولی یہ تو میں نہیں کر سکتی، اگر آپ ہماری طرف سے یہ چلہ کاٹ دیں ہم آپ کو ساری چیزیں مہیا کر دیں گے یا ان کی قیمت ادا کر دیں گے، میں یہ چلہ خود اپنی طرف سے کر دوں گا، لیکن اس کے لیے آپ کو نگین کو میرے آستانے پر چھوڑنا ہوگا۔ مجھے اور اماں کو مولوی صاحب کی مہارت پر پہلے ہی یقین ہو گیا تھا، کیونکہ جس طرح 5 منٹ میں نگین کی حالت بہتر ہوئی تھی، اس سے پہلے والے مولوی صاحب کے ہاں ایسا نہیں ہوتا تھا۔
वो आधा डेढ़ घंटा दम करते, तब जाकर नगीन की हालत संभलती। आपकी बार नगीन बिल्कुल दुरुस्त थी, उसकी हालत बिल्कुल ठीक थी, अलबत्ता वो ज़रा सहमी हुई थी। मौलवी साहब कहने लगे, आपको बीवी 3 दिन आस्ताने पर रहना पड़ेगा, तब जाकर इसका मुकम्मल इलाज हो सकेगा। उस पर जो साया आशिक है, उसे भगाने में मुझे काफ़ी मेहनत लगेगी। ऐसे में मरीज़ा का यहाँ होना ज़रूरी है। अगर वो अपने घर या किसी दूसरी जगह पर होगी तो उसे नुकसान हो सकता है। ये देखकर नगीन का रंग पीला पड़ गया। बोली, मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुकूंगी, मुझे घर जाना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ। यह सुनकर मौलवी साहब बोले, आपकी बीवी का मुकम्मल इलाज करवाना ज़रूरी है, वरना उसकी हालत दोबारा ख़राब हो जाएगी। ये जितना मर्जी कहे, इसके अंदर जो साया मौजूद है वो नहीं चाहता कि इसका इलाज हो। बेहतर होगा आप इसे यहीं छोड़ जाएं, क्योंकि इसका इलाज होना बहुत ज़रूरी है, वरना कल को ये आपको नुकसान पहुँचाएगी। गर्ज उन्होंने ऐसी बातें की तो मैं और अम्मा कायल हो गए। वैसे भी नगीन तो पीर फ़कीरों के पास ही जाकर ठीक होती थी। मैंने हामी भरी, नगीन मेरे पाँव पड़ गई। खुदा के लिए मुझे यहाँ मत छोड़े, मैं नहीं चाहती कि मैं यहाँ अपना इलाज करवाऊँ। मैं ठीक हूँ, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। नगीन की बातें सुनकर अम्मा और परेशान हो गई। बोली, मौलवी साहब सही कह रहे हैं, इसके ऊपर जो जिन आशिक है वो उसे मजबूर कर रहा है कि वो इसका इलाज ना होने दे। हम इसे यहीं छोड़कर चले गए। हमने नगीन को ज़बरदस्ती आस्ताने पर छोड़ा और खुद घर आ गए। मौलवी साहब ने 3 रातों का चिल्ला काटना था, उसके बाद नगीन की हालत सही हो जानी थी। आज चिल्ले की पहली रात थी, मुझे बहुत बेचैनी सी हो रही थी। अम्मा अपने कमरे में सो रही थी। मैं नगीन से अपनी शादी के बारे में सोच रहा था। मेरी जब नगीन से शादी हुई थी, वो इंतहाई खूबसूरत और कम-उम्र लड़की थी। उसके हुस्न का कोई सानी नहीं था। उसके अब्बा ने अपनी वफ़ात के 2 दिन पहले मेरे निकाह उसके साथ कर दिया था। मैं नगीन को आज भी चाहता था और पसंद करता था, मगर नगीन की आंखों में अपने लिए कभी मोहब्बत ना देखी थी। जब नगीन ब्याह कर आई तो वो बहुत कम उम्र थी, उसे किसी बात का पता न था। मुझे उसकी मासूमियत से इश्क हो गया। फिर रफ्ता रफ्ता नगीन की हालत बिगड़ने लगी। मैं उसकी इस हालत से तंग आ गया था। अलबत्ता मौलवी साहब के पास आते ही उसकी हालत ठीक हो जाती। मैं बहुत परेशान था। अभी मेरी आंख खुली ही थी कि मेरे कमरे से आवाज़ आई। मैं उठकर बैठा। अम्मा के कमरे से मुसलसल आवाज़ें आ रही थीं। मैं भागता हुआ उनके पास गया। देखा तो अपने सीने पर हाथ रखे बैठी थी, उनके माथे पर पसीना था। मैंने घबराकर पूछा, अम्मा क्या हुआ, तबीयत ख़राब है? वो बोली, बेटे मेरा दिल घबरा रहा है। नगीन के बारे में न जाने वो मौलवी कैसा होगा। हम उसे वहाँ छोड़ तो आए हैं, लेकिन हमें यह भी तो देखना चाहिए था कि वो कितना मना कर रही थी कि उसे वहाँ नहीं रुकना। और फिर एक जवान औरत को इस तरह आस्ताने पर किसी पीर फकीर के पास छोड़कर आना कहाँ की अक्लमंदी है। अम्मा ने अब ये बात कही थी, हालांकि इससे पहले हम पीर फकीरों के बारे में ऐसी किसी बात पर यकीन न रखते थे। हमारी बड़ी अकीदत थी, और वैसे भी हम जहाँ गए थे वहाँ की शोहरत इंतहाई अच्छी थी। ऐसा वाक़या कभी भी पहले नहीं हुआ था, ना ही वहाँ आने वाले पीर फकीरों के बारे में गलत बात सुनी थी। मगर फिर भी इस्लाम में इन हदूद की पाबंदी करना ज़रूरी है, चाहे इंसान नेक हो या बद हो। मुझे भी इस वक्त एहसास हुआ कि मैंने गलत किया। नगीन को इस तरह पीर साहब के पास छोड़कर नहीं आना चाहिए था। हो सकता है उसे कोई ऐसी बात महसूस हुई हो, उसने हमें मना किया। वो फिर पीर साहब के पास नहीं रुकना चाहती थी। वैसे भी पहले वाले हजरत भी तो दम करके भेज दिया करते थे। 3 रातों के चिल्ले की समझ ना आ रही थी। अम्मा के कहने पर मैंने गाड़ी निकाली। वो मेरे साथ पिछली सीट पर बैठी थी। उन्हें लेकर मैं पीर साहब के आस्थाने पर पहुंच गया। देखा तो वहाँ हल्की हल्की रोशनी थी। सब लोग जा चुके थे, जबकि पीर साहब का कहना था कि रात को यहाँ कुछ औरतें आएंगी, उनकी मौजूदगी में वो मेरी बीवी का चिल्ला काटेंगे और ये उनकी मावन होंगी। पीर साहब के आस्थाने की रोशनी बंद थी। हम बहुत परेशान थे कि पता नहीं पीर साहब नगीन को लेकर कहाँ चले गए हैं। मैंने अम्मा को गाड़ी में रुकने का कहा और फिर चलता हुआ पीर साहब के आस्थाने पर चला गया। वहाँ जाकर देखा एक मुजावर खड़ा था। पीर साहब अकेले किसी मर्द को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे सकते। यहाँ ख़वातीन आती हैं, उनके चिल्ले होते हैं, उन पर मुख्तलिफ अमल किए जाते हैं। बेहतर है आप यहाँ से चले जाएं। कल दिन के वक्त आइएगा। तब मुझे कुछ महसूस हुआ कि वाकई दाल में कुछ काला है। मैंने अम्मा से कहा, आप भी आ जाएं। अब तो मुजावर को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए था, मगर खिलाफ तवक्का वो मुझसे लड़ने लगा। बोला, कोई भी औरत अंदर नहीं जा सकती, इस वक्त चिल्ले का वक्त है। मगर मैं उसके सर हो गया। अम्मा को अंदर भेजा और ख़ुद उसे बातों में लगा लिया। वो सही और गलत की बहस मुझसे कर रहा था, जबकि मैं जानना चाहता था
यहाँ पर कुछ भी सही नहीं हो रहा। रात के वक्त यहाँ पर कौन से चिल्ले काटे जाते हैं। अम्मा जो आस्ताने के अंदर गई चीखती चिल्लाती वापस आई, बेटा जल्दी चलो, नगीन रो रही है। खुदा न जाने क्या हुआ, पीर साहब दरवाज़ा भी नहीं खोल रहे। अम्मा के कहने की देर थी कि मैं उनके पीछे पीछे दौड़ा। दरवाज़ा वाकई बंद था। नगीन की हल्की हल्की सिसकियों की आवाज़ें आ रही थी। मैंने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की। मजावर आकर मुझे रोकने लगा, मगर जोश में आकर मैंने दरवाजे को ऐसी ज़रब लगाई कि दरवाज़ा टूटकर चौखट से अलग हो गया। अंदर देखा तो नगीन चादर में लिपटी बैठी रो रही थी। खुदा ना ख्वास्ता कुछ हो तो नहीं गया। मेरे दिल ने सोचा, ओ खुदाया, इस कमरे की हालत क्या बनी है। मैंने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। अजीब रंग सा कमरा था जिसमें और कुछ ना साथ सिवाय एक बिस्तर के और एक अंगीठी के। नगीन, मौलवी साहब कहाँ गए? मैंने उसे कंधे से झंझोड़ते हुए पूछा। वो खबीस मुझे यहाँ बंद करके इस दरवाजे से बाहर गया है, न जाने क्या चीज़ लेने गया है। मुझे उसके तेवर ठीक नहीं लग रहे थे। खुदा के लिए आदल, मुझे घर ले चलें, मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुक सकती। उस शख्स ने मुझे इस कदर गलीज बातें बोली कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। नगीन ने कहा तो मेरा गुस्सा सातवें आसमान को छूने लगा। पुलिस में मेरा जानने वाला एक दोस्त था। मैंने उसी वक्त उसे फ़ोन किया। मैं तो समझता था कि इस आस्थाने की शोहरत अच्छी है। अम्मा ने कभी भी कोई मनफी बात ना कही थी। तभी मैं अपनी बीवी को यहाँ ले आया था। फिर अम्मा के इसरार पर मैं नगीन को यहाँ छोड़ गया, मगर अब हालात मुख्तलिफ थे। पीर साहब की असलियत खुलकर सामने आ चुकी थी। 15 मिनट बाद थाने की गाड़ी भी आ गई। जब पुलिस की गाड़ी आस्थाने के बाहर आकर खड़ी हुई तो मुजावरों के हाथ भी पाँव फूलने लगे। कहने लगे, हम तो यहाँ महज काम करते हैं, हम पीर साईं को नहीं जानते। पीर साईं खुदा जाने कहाँ गए थे, गालबाना अपने इरादे की तकमील के लिए। वो कुछ इंतजाम करना चाहते होंगे ताकि वो इस बात को यकीनी बना सकें कि आस्थाने पर कोई नहीं आ रहा, मगर उन्हें मेरी मौजूदगी की इतला मिल गई होगी। तभी वो किसी चोर दरवाजे से निकल गए होंगे। पुलिस वालों ने सारा आस्थाना छान मारा, मगर वो शख्स कहीं नहीं मिला। मैं अपनी बीवी को लेकर घर आ गया। वो बेचारी मारे डर और खौफ के कांप रही थी। मैंने उसे चादर उड़ाई और हम घर पहुंच गए। नगीन की हालत इंतहाई नाजुक थी। मैंने उसे आराम करने को कहा और खुद भी सो गया। सुबह उठा तो नगीन अभी तक सो रही थी। मेरे लिए अम्मा ने नाश्ता बनाया और मैं ऑफिस चला गया। वापस आया तो नगीन का रो रो का बुरा हाल था। मैं समझा कि उसकी तबीयत फिर खराब हो गई है। अब मैं उसे किसी भी पीर फकीर के पास ले जाने के मूड में नहीं था। तभी मैंने इस बात का कोई खास नोटिस नहीं लिया। दिल में सोच रहा था कि अब जो होगा अल्लाह के हवाले, मैं इसका इलाज करवाने की कोशिश नहीं करूँगा। पीर फकीर के पास जाने से अपनी खुरमत पर आँच आने से बेहतर है औरत अपनी चार दीवारी में मर जाए। मेरा दिल अजीब सा हो गया था। तब नगीन आकर मेरे सामने बैठ गई। उसकी आंखों में सुरह डोरे थे। वह मुझे रोते हुए देखकर बोली, मुझे माफ़ कर दो आदल, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैं बहुत बेख्याल और बादचलन हूँ। मैं जितनी तुमसे माफ़ी मांगूँ इतना कम है। ये कहती वो मेरे कदमों में बैठ गई। नगीन, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम्हें कोई मसला है तो बताओ मुझे। मैंने परेशानी से पूछा। नहीं आदल, मुझे कोई मसला या परेशानी नहीं, मेरी तबीयत भी ख़राब नहीं, अभी तो मुझे होश आया है। मैं आपको एक बात बताना चाहती थी, मगर वादा करें इसके बाद आप मुझसे नफरत नहीं करेंगे। मैंने सुना है कि मर्द अक्सर सच सुनने के बाद अपनी बीवियों को धुतकार देते हैं। खुदा के लिए आप ऐसा मत कीजिएगा, मुझे मेरे ज़मीर का बोझ हल्का करने दे, नगीन ने कहा। तो मैं पुरस्कून होकर बैठ गया। कहो नगीन, मैं सुन रखा हूँ। वादा करता हूँ तुमसे नफरत नहीं करूँगा। बड़े ही कमज़ोर मर्द होते हैं जो अपने वादे पर कायम नहीं रहते। बताओ क्या बात है? मैंने नगीन को हौसला दिया तो वो मुझे बताने लगी, आदल आप तो जानते हैं अब्बा का रुझान मजहबी था। इसी वजह से मुझे शुरू से ही ऐसे लोग पसंद थे जो मजहबी हों, उनका अंदाज शाइस्ता हो और चेहरे पर सुन्नत रसूल सजी हो। मैं उसे शायद शरीयत समझती थी, मगर ये महज मेरी ख्वाहिश थी। अब्बा के आस्थाने पर जो भी शागिर्द आते, मैं उन्हें आंखें फाड़ फाड़ कर देखती। उनके चेहरों पर अजीब सा नूर था। मौलवी नूरुल खुदा की बेटी होकर मेरी आंखों में इतनी हया ना थी जितनी नौजवान की आंखों में होती है। अब्बा नहीं जानते थे कि मैं किस तरह के नावल पढ़ती हूँ और मेरी सोच कितनी गंदी हो चुकी है। वो मुझे मासूम बेटी समझते थे। शायद आपने भी मुझे एक मासूम लड़की ही समझते होंगे, मगर मैं ऐसा नहीं थी। मैं हर चीज़ के बारे में जान गई थी। ज़माने की हवा मुझे ना लगी थी, मगर किताबों और मोबाइल के ज़रिए मैंने पूरी दुनिया की सैर कर ली। बस इसी वजह से मैं दिन रात ऐसे जीवन साथी के बारे में सोचने लगी जो हूबहू अब्बा के जैसा हो। उन दिनों अल्लाह दीता हमारे मदरसे में आने लगा। वो अब्बा का ख़ास तालिब इल्म था। अब्बा भी उससे मोहब्बत से पेश आते थे।
वो भी आला किरदार का मालिक, खुश शक्ल और खूबसूरत। मगर जब से मैंने उसे देखा था मेरे तो दिल का चैन लुट गया। मैं उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहती थी। एक दिन मैंने उसके सामने इजहार भी कर दिया कि मैं तुम्हें अपनाना चाहती हूँ। उसने कानों को हाथ लगाए, दोबारा इस बारे में जिक्र ना करने के मना किया। मगर मेरे सर पर उसके इश्क का भूत सवार था। मगर फिर जल्द ही अब्बा को मेरी इन कोशिशों का इल्म हो गया कि मैं उनके शागिर्दों के इर्द गिर्द मंडराती रहती हूँ और मेरी नज़रें बेहया हो चुकी हैं। तब अब्बा ने मुझे आपके साथ ब्याह दिया। जब मेरी शादी हुई तो मैं बिल्कुल भी इस शादी के लिए रजामंद नहीं थी। अगरचे आप भी एक बाशर इंसान थे, मगर मेरा दिल आप में न लग सका। तभी मैंने अल्लाह दीता के बारे में सुना कि वो इसी इलाके के आस्थाने में गद्दी नशीन मुकर्रर हो गया है। इस आस्थाने की शोहरत अच्छी थी। मैंने अपनी तबीयत ख़राब कर ली और आस्थाने पर पहुंचने का रास्ता किया। यहाँ पर मेरी मुलाकात अल्लाह दीता से हुई। वो मुझे दोबारा यहाँ देखकर हैरान रह गया। उसने मुझे समझाने की कोशिश की मैं अपने इरादे से बात आ जाऊँ। मैंने कहा मैं और कुछ ना कहूँगी, बस आधा घंटा तुमसे हर जुमेरात मिलने आया करूँगी। उसने मुझे बहुत मना किया, मगर मैंने कहा अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूँगी। अल्लाह दिता मजबूर हो गया और मेरी मजबूरी के सामने वो कुछ ना कर सका। मुझे अपने आस्थाने पर बुला लेता और मैं उससे बातें करके आ जाती। मगर रफ्ता रफ्ता मेरी तलब बढ़ती गई, यहाँ तक कि उसने खुद ही अपना दामन छुड़वा लिया और उस आस्थाने से चला गया। जिस दिन दूसरे पीर साहब आए थे मैं नहीं जानती थी कि ये वही है। अंदर जाते ही मैंने बेतुकल्लफाना बातें शुरू कर दी। जब थोड़ी देर बाद नज़र उठाकर देखा तो मेरी जान निकल गई। यहाँ तो कोई और खड़ा था। ये खबीज इंसान मुझे देखकर हंस रहा था। उसे मेरी हकीकत का चंद मिनटों में ही इल्म हो गया था। उसने मुझे धमकी दी अगर मैं शोर शराबा करूँगी या फिर यहाँ से भागने की कोशिश करूँगी तो ये आपको मेरी हकीकत बता देगा, और यहीं से मेरी बर्बादी का रास्ता शुरू हुआ। मुझे इस खबीज के आस्थाने पर रुकना पड़ा। वो इंतहाई बद किरदार शख्स था, मगर फिर खुदा ने ना जाने कैसे आपके जहन में ये बात डाल दी। शायद मेरे अब्बा की कोई नेकी काम आ गई कि आप मुझे लेने आ गए, वरना मैं उस दिन बर्बाद हो जाती। ये कहकर नगीन रोने लगी और मैं उसका चेहरा देखने लगा। वो किस कदर मासूम दिखती। मौलवी साहब की बेटी होकर उसने इतनी बड़ी बेहयाई का काम किया, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। अब मुझे नगीन से नफरत तो नहीं है, मगर पहले वाली मोहब्बत भी नहीं रही। मैं कभी कभी अकेला बैठा सोचने लगता हूँ कि मैं मौलवी अल्लाह तिता से कहूँ कि वो मेरी बीवी को अपने निकाह में ले ले, लेकिन मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। यही सोचकर मैं चुप हो गया।